up with a great event that revolves around diet, nutrition, and educational upgrade. We all have heard about the saying that goes, what you put on the inside is what you wear outside, which basically means our choice of food that we decide to eat thereby decides the presentation and reflection of our physical, mental, and emotional state. So, in today's panel discussion, we are going to have an in-depth knowledge and fact check about health and nutrition. First of all, I would like to welcome Shreya ma'am. She's a renowned clinical dietitian who's an expert in diabetes management, weight control, hormonal imbalance. She's also been a TEDx speaker. She's also been an author and freelance writer on health and nutrition. Thank you, ma'am, for being here today. We hope to have a very productive and fruitful exchange of knowledge. Next, we have Dr. Kar sir, our faculty and professor from School of Bioscience, APJ Satta University. Thank you for your time, sir, for being here and being a part of this event. And finally, we have our moderator and program coordinator for the day, Dr. Vijay Kumar, our faculty member from School of Education. Thank you, sir, for organizing this event. We also have other faculties from our college, Dr. Anand Pradhan, Abdul sir we have here, and we also have Rajneesh sir. We'll also have the entire team of Shreya ma'am. Thank you so much. So now we can start with our entire program. Yeah, so I would like to first of all welcome Shreya ji. She was very kind enough to accept our proposal. Actually, we wanted to have this session in last month that is celebrated as Poshan Maha. That is month of nutrition. But because of her busy schedule, we could not have that. But she agreed, and another reason was she was also busy in her book. She has recently launched a book, so that was another reason. So now I welcome Shreya ji in our NSS panel discussion. I would like to introduce something about NSS. NSS is a community service arm of APJ Satya University, and we organize so many programs which create a linkage between society, community, and the youth, our students. So we organize so many programs, and this program is in line of that only. So I would like to welcome again Shreya ji, and would request her to kindly enlighten us with her experience and knowledge. Shreya ji, please. Right. Thank you so much for the introduction. It was very kind. All right. So today. Please unmute yourself. Just a minute. Just a minute. Yes. Now you can unmute. Yes. Am I audible now? Yes. Yes, ma'am. Yes. Very good afternoon to all. All right. So we'll be talking about the brain because it is the very important organ if we are going to talk about the education. So see, let's understand what the brain is first. Brain is, let me tell you, it is very hungry organ. So brain is always very hungry for energy, and let me tell you, it uses 1/5 of all the blood pumped by your heart. So that way, that is a hungry organ. So food and drink are very important to keep it working properly. So I'll be giving you a formula. You can jot it down. It is education. So I'll reveal the education and you will get all the deep knowledge in this word only, education. This is the formula I'll be talking about. So here are the brain boosting foods that every student and professional needs to eat to keep their grey cells fit. So let's start with education, which is E. So always start your day with eggs. That's the first education E alphabet. So you need to have eggs, at least 2 or 3 egg whites in a day. Eggs are a good source of several nutrients tied to brain health, including B vitamin, which is B6, B12, folate and choline. So choline is an important micronutrient that your body uses to create acetylcholine. That is a neurotransmitter which boost up your memory and regulate your mood. So whosoever is vegetarian,
If they can incorporate eggs in their diet, they will have the sharpened memory, more sharp memory, and they can recall things much better. So education E, eggs are very important in your diet. So some people, they have a problem with their smell and the taste, so you can always opt for the eggs which are no hedge eggs, which are eggs from the hen, which are fed with the organic feed. So that ways you can choose your eggs. Hen fruit is the brand you can always opt for if you want the no smell eggs. Then we'll go to D, education D, that is dark chocolate. So dark chocolate without the dairy, without the milk, that improves the brain health and strengthens the body's immune system. So if children are lacking the immune system, what will you do with your brains? So with the sharp brain, you need to have sharp immunity as well. So dark chocolate gives you multiple benefits. It has cocoa, which we call cocoa or cacao. It has significant effects on mood, cholesterol, insulin sensitivity, because nowadays we are getting students with the diabetes problem, insulin diabetes, which is called juvenile diabetes. So to keep the blood sugar in the control, you need to have a piece of dark chocolate which controls the insulin sensitivity, and that also gives you a blood vessel proper function. So that ways you will not have your migraine or a headache. If you have a trigger with chocolate, you can avoid it. Otherwise, this is very good for the brain, for the migraine. So the darker the chocolate, the greater the health benefits would be. So that is also rich in flavonoid, which is again antioxidant and can prevent or protect the cell from damage and reduce inflammation. So I have covered E and D. Now let's jump on U. See, India is a kind of country where everyone rely or they eat more of breads and pranthis and rotis. So I would request, प्लीज स्विच योर गेहूं, जो भी आप गेहूं खाते हैं या फिर जो आप व्हीट खाते हैं, हमेशा गेहूं की रोटी या फिर गेहूं का सूजी का उपमा या फिर रस या ब्रेड. ट्राई टू लिमिट योर ग्लूटेन इनटेक. जितना ज़्यादा आप गेहूं खाएंगे, जितना ज़्यादा आपके डाइट में ग्लूटेन रहेगा, योर ब्रेन फंक्शन वुड बी डिक्लाइंड. सो आप क्या कर सकते हैं, इन योर डेज मील आप उसमें एक बार एमरेंथ का उपमा जरूर रखें. नाउ व्हाट इज एमरेंथ? एमरेंथ बहुत फैंसी नेम लग रहा है, बट दिस इज एक्चुअली चुलाई. हम लोग चुलाई का साग भी खाते हैं मार्केट में जो मिलता है, या चुलाई के लड्डू मिलते हैं. अभी नवरात्रे आने वाले हैं, 17 से नवरात्रे हैं. सो यू विल बी गेटिंग प्लेंटी ऑफ एमरेंथ लड्डूज फ्रॉम द मार्केट. सो अगर स्टूडेंट्स को बीच में भूख लगती है, दे कैन ऑलवेज मंच ऑन एमरेंथ लड्डूज, या एमरेंथ का एक ऐसा चिक्की भी आता है. सो यू कैन हैव एमरेंथ विच कैन गिव यू डेली रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स इन जस्ट वन सर्विंग. जिनके भी मैग्नीज का प्रॉब्लम है, सिर में दर्द रहता है, आईज अच्छी नहीं है, ब्रेन फंक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, या न्यूरोलॉजिकल कोई कंडीशंस है, एमएस या कुछ भी, सो एमरेंथ का उपमा टेकन इन द ब्रेकफास्ट और टेकन इन द लंच, दैट विल गिव यू अ गुड ब्रेन हेल्थ फंक्शन. सो आप एमरेंथ को आटे के रूप में भी खा सकते हैं. यू कैन मेक रोटीज, यू कैन मेक परांठाज, यू कैन मेक उपमा आउट ऑफ एमरेंथ. सो एजुकेशन में ई, डी एंड देन यू, एमरेंथ का उपमा. देन कमिंग टू सी, एजुकेशन में जो सी का पार्ट है वो क्या प्ले करता है. हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टू कीप आवरसेल्व्स अवेक. जब हमारे कुछ एग्जाम्स होते हैं, हम लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं. कई लोग अपने एनर्जीज को बूस्ट अप रखने के लिए दे टेक एनर्जी ड्रिंक्स, रेड बुल्स या फिर बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स. ये सब चीज़ों में, चाहे वो ग्रीन टी ही क्यों ना हो, इन सब में कैफीन, टेनिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग अपने डाइट में कैमोमाइल का इंटेक बहुत अच्छा रखें. कैमोमाइल टी जो है वो एक माइल्ड ट्रैंक्युलाइजर और स्लीप इंड्यूसर की तरह काम करती है. तो हम लोगों को क्या है, हम लोग ये भी नहीं चाहेंगे कि आपको स्टडीज इतना प्रेशर डाले कि आप एंजाइटी या डिप्रेशन में आ जाओ, या आपको अपने स्टडीज का इतना ज़्यादा प्रेशर हो कि एक्चुअली आपको ये जो सब बाकी स्टडी है ये बेनिफिट की जगह आपको प्रॉब्लमैटिक लगने लगे. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि दिन में 2-3 कप कैमोमाइल टी की पियो. इसमें ना कैफीन है ना टेनिन है. इसमें सिडेटिव इफेक्ट है, जो एक आपको बेसिकली सिडेटिव इफेक्ट इसलिए आता है क्योंकि इसमें फ्लेवोनॉइड है, एपिजेनिन है. वो क्या करता है, वो बाइंड करता है बेंजोडाइजापाइन को. वो एक रिसेप्टर है ब्रेन में.
सो अब ये क्या करता है, क्योंकि ये रिसेप्टर को कैमोमाइल टी एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है, तो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है एक अच्छी नींद के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो लेट नाइट स्टडीज करते हैं, रात को सोने से पहले कैमोमाइल टी पी के सोएं, ताकि आपका ब्रेन अच्छे से रिलैक्स कर पाए, और ब्रेन ने पूरे बॉडी को आपके नरिशमेंट देना है, संभालना है, स्टिमुलेशंस देनी है, तो आपको अपनी इम्यूनिटी को भी एट पीक रखना है। उसके लिए कैमोमाइल टी में फ्लेवोनॉइड्स बहुत अच्छे हैं। नाउ कमिंग टू अनदर अल्फाबेट दैट इज आफ्टर सी, ए। एजुकेशन में हम लोग ए के बारे में बात करेंगे, विच इज आमंड। कई लोग क्या करते हैं, मैंने कई बार देखा है, आई एम श्योर अगर आप लोग इंटरेस्ट से सुन रहे हो तो आप लोग मुझसे अग्री करोगे कि आपके मम्मा बोलेंगे या आपके पापा बोलेंगे कि प्लीज मेरे बच्चे आज देखो दूध पीना है, हल्दी वाला दूध पी ले, बिकॉज आजकल पढ़ाई का प्रेशर है, सो दूध पी लेना। सो अगर आप लोग दूध पीते हो तो उसमें एक डेयरी फैक्टर है, डेयरी फैक्टर इन द सेंस कि उसमें सैचुरेटेड फैट्स हैं, और कई फीमेल्स को, जो स्टूडेंट्स फीमेल हैं, क्योंकि आपकी जो एज है बेसिकली वो 20-25 इतना एज फैक्टर्स में आप लोग आते हैं, तो कई बार हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, पीसीओडी होता है। सो ये डेयरी कहीं ना कहीं आपको नुकसान कर देता है, क्योंकि आपका सिटिंग है सारा। इस सिटिंग रीजन की वजह से अगर आप अपना वेट भी पुट ऑन कर लेंगे, तब भी आपकी हेल्थ आपकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करेगी। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग, आपको टी पता चल गया, कैमोमाइल टी, आप लोग अपने दूध को रिप्लेस कर लें आमंड मिल्क के साथ। रात को बादाम भिगोएं, उसको आप क्रश कर लीजिए, ब्लेंड कर लीजिए विद वाटर। नाउ दैट वाटर इज योर आमंड मिल्क। अगर आप लोग ऐसे नहीं पीना चाहते, बादाम मुट्ठी भर के खाना चाहते हैं, दिस इज अ लॉन्ग ट्रेडिशन, मतलब ओल्ड लॉन्ग ट्रेडिशन, चलता आ रहा है और बहुत पुराना भी है। सो मम्मी हम लोगों को भिगो के देती होती थी बादाम, वो कल्चर आप अपना रखिए। बादाम में विटामिन ई होता है। विटामिन ई क्या करता है, मेमोरी को प्रिजर्व करता है, आपको लॉन्ग टर्म अलर्टनेस देता है, और इसमें आपका बहुत सारे विटामिन हैं, B6, वो आपको B6 विटामिन, आपको बस ये याद रखना है कि B6 विटामिन आपके ब्रेन हेल्थ के लिए जरूरी है, जो कि आपको मिलेगा बादाम से। तो एक मुट्ठी बादाम जरूर खाएं। बिस्किट्स को छोड़ दें, चिप्स को छोड़ दें, उसके जगह पे मंचिंग अगर करना है तो बादाम के साथ कर सकते हैं, बट दैट हैज टू बी सोक्ड आमंड्स। नाउ आफ्टर कवरिंग EDUCA, लेट्स मूव टू टर्मरिक। इसके बाद हमारे 3 और अल्फाबेट्स हैं। टर्मरिक आप सबने सुना है, आजकल जो ये आपका पैंडेमिक चल रहा है, आप लोगों को कर्क्यूमिन के शॉट्स मिलते हैं मार्केट में, महंगे महंगे, आप सप्लीमेंट्स खाते हैं। टर्मरिक जिंजर टी, आप लोगों ने अगर मेरी रेसिपी देखी हो यूट्यूब चैनल पे, नहीं देखी तो ज़रूर देखना। मैं भी किसी दादी से कम नहीं हूँ, मेरे भी सारे दादी माँ के नुस्खे और मेरे यूट्यूब चैनल्स में सारी वैसी रेसिपी होती हैं, चाहे वो आपके राही का शीरा हो, या टर्मरिक टी हो, या फिर अलसी की पिन्नी हो। सो अगर जिस भी स्टूडेंट्स को ऐसा कोई रेसिपी चाहिए तो वो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, बट अदरवाइज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं टी, विच स्टैंड्स फॉर टर्मरिक। कर्क्यूमिन होता है जो कि ब्रेन लेवल्स में BDNF को मतलब रेगुलेट करता है। एज रिलेटेड जितनी भी ब्रेन फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होती है उसको वो कंट्रोल करता है, आपके ब्रेन को और ज़्यादा स्मार्ट बनाता है, क्योंकि इसमें जो BDNF बढ़ाने के लेवल्स हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं। तो आपको एक बार, चाहे आपकी इम्यूनिटी के लिए, कोविड को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए, एक टर्मरिक जिंजर टी, या जितने लोग, अगर आप में से कोई पहाड़ी हैं तो वो तो जानते हैं कि एक कच्ची हल्दी की चटनी भी बनती है, तो अपने घर में हल्दी का इंटेक ज़रूर करें। नाउ मूविंग टू अनदर अल्फाबेट विच इज आई। आजकल अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेंड चल पड़ा है जहाँ पर हम लोग अपने डाइट से नमक को निकाल देते हैं। अगर नहीं निकालते तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि सेंधा नमक बहुत अच्छा है। सेंधा नमक अनडाउटेडली बहुत अच्छा है, पिंक सॉल्ट बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। पर अगर आपका सेंधा नमक या आपका ऐसा कोई सॉल्ट जो आयोडाइज ना हो तो आपके ब्रेन को वो डैमेज कर सकता है। तो इंडिया में जो पॉपुलेशन है, इंडिया में ऐसे बहुत सारी सिटीज़ हैं, स्टेट्स हैं जहाँ पे आयोडीन का डेफिशिएंसी है। सो मैं आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग प्लीज़ अपने डाइट में आयोडाइज्ड सॉल्ट का इंटेक ज़रूर रखें। अपने डाइट में आइसबर्ग, आप ये नोट कर लीजिए, अगर आप लोग आइसबर्ग नहीं खाते हैं तो ज़रूर खाइए। आइसबर्ग क्या होता है, आप लोगों ने बहुत जगह पे ऐसे सबवे सैलेड्स खाते होंगे, या आपने देखा होगा, आपके शायद कैंपस में भी हो। सो एक लेटस अलग होता है, आइसबर्ग होता है। सो एक वाइट कलर की चाइनीज कैबेज टाइप होती है, वो आइसबर्ग होता है। इसमें बहुत सारा फाइबर कंटेंट है, आपके ब्रेन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। जो लोग आइसबर्ग नहीं खा सकते वो खीरा खाइए।
अपने डाइट में जैसे मैंने आपको उपमा बताया था वैसे इडली भी रखिए, पर इडली किस चीज से बनाइए? ओट्स के साथ, सिर्फ सूजी के साथ नहीं, ओट्स के साथ बनाइए। ओट्स की सूजी हो सकती है, एमरैंथ की इडली हो सकती है। सो इडली, आइसबर्ग एंड आयोडाइज सॉल्ट, ये तीन हमारे आई में स्टैंड करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड लास्ट अल्फाबेट एजुकेशन में ओमेगा 3। ओमेगा 3 जैसे मैंने ओट्स आपको पहले कवर किया है कि इडली आप ओट्स की बनाइए, वैसे ही आपको अपने डाइट में, क्योंकि वेट नहीं बढ़ने देना है, वेट बढ़ेगा तो ब्रेन फंक्शन भी आपका कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाएगा, कोई बीमारियां आ जाएंगी। हम लोग जब भी एजुकेशन की बात करते हैं हम लोग कंप्लीट हेल्थ की बात करते हैं। अब वो हेल्थ चाहे ब्रेन से हो, पैनक्रियास से हो, किडनी से हो, आपके आईज से हो, आपकी बॉडी से हो, आपके अलर्टनेस एक्टिवनेस से हो। इसीलिए हम लोग एक फॉर्मूला आपको दे रहे हैं, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही आपने अपना डाइट रखना है। सो अपने डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छे से रखें। ये सेल मेम्ब्रेन को पूरे बॉडी में, ब्रेन से लेके बॉडी तक कंप्लीट, ये एविडेंट है कि एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में। चाहे आप इसके कैप्सूल्स ले लीजिए, मार्केट से सैल्मन फिश ऑयल के आपको मिलते हैं, वरना आप एक पिन्नी बना सकते हैं अलसी की, और ओट्स में बहुत अच्छा ओमेगा 3 होता है, सो आप वो भी ले सकते हैं। चिया सीड भिगो के रखिए, जैसे बादाम था वैसे चिया सीड आप अपने डाइट में जरूर लीजिए। इसके बाद लास्ट हमारे पास आता है एन, यानी कि नट्स एंड सीड्स। सो आप लोग मंचिंग करने के लिए क्या करें, मैंने कल ही अपने मदर के लिए और बच्चों के लिए एक जार भर के बनाया है, मैं आपको उसकी रेसिपी देती हूँ। वाटरमेलन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, व्हाइट तिल, काले तिल, अलसी, इन सबको आप रोस्ट कर लीजिए, अच्छे से भून लीजिए। उसके बाद बस आप अपना एक जार फिल करके रख लो। मखाने इसमें डालने हैं, मखाने भी डाल सकते हैं। आपको जब भी भूख लगे, चिप्स, बिस्किट्स, इन सब की बजाय आप मंचिंग कीजिए बादाम पे, ये वाले सीड्स एंड नट्स में। तो अगर आप ऐसी चीजें करेंगे तो आपको क्या होगा, ब्रेन के लिए एक न्यूट्रिएंट है एसेंशियल फैटी एसिड्स, आई एम श्योर आप सबने सुना है, EFAs कहते हैं उसको। एसेंशियल फैटी एसिड्स के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आप एक अपना कोकोनट ऑयल का 1 चम्मच जरूर लीजिए अपने डाइट में। आप अलसी की पिन्नी खाइए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, न्यूरोबियोन या ऐसे कोई भी आप ब्रांड का, अगर आपको लगता है कि आप बी विटामिन आप डेफिशिएंट है उसमें, तो आप जरूर लीजिए। विटामिन सी अपने डाइट में रखिए। अमाइनो एसिड्स यानी कि एग जरूर आप अपने डाइट में रखिए। उसके अलावा हमारे बॉडी में एक स्टोरेज होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का, जो कि है बी एंड सी। तो मैग्नीशियम, जिंक, ये सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि अपने ब्रेन फंक्शन के लिए नींबू पानी, नारियल पानी अपने डाइट में अच्छे से रखिए। उसके अलावा अपने डाइट को इतना कलरफुल बनाए, रेनबो। बस आपको ये याद रखना है कि डाइटिशियन श्रेया ने आपको क्या बोला, एक तो एजुकेशन फॉर्मूला, ये आपको फॉलो करना है। दूसरा, अपने डाइट में रेनबो यानी कि रेड, जितने भी आप कलर्स रख सकते हो, ऑरेंज या फिर पपाया में जो एक येलो कलर होता है, विबग्योर जो हम लोग कलर कहते हैं, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ब्राउन, येलो, ऑरेंज, रेड, अपने विबग्योर कलर जरूर रखें। और उसके अलावा ट्रांस फैटी एसिड्स यानी कि जो आप तले हुए चिप्स खाते हैं, केक्स या बिस्किट्स हो गए, बेकरी के आइटम से थोड़ा दूर रहें। शुगरी आइटम्स, शुगर लोडेड ड्रिंक्स, चाहे वो आपका बिना कैलोरीज के कोई ऐसा एरिएटेड ड्रिंक हो, वो भी आपको नुकसान ही देगा चाहे कैलोरीज ना दे। अपने डाइट में मिलेट्स यानी कि रागी, ज्वार, बाजरा जरूर रखें। ओमेगा 3 डाइट में अच्छा रखें। फ्रेश कोकोनट, अगर कई लोगों को नारियल की घिरी खाने की आदत होती है, वो जरूर आप रखें अपने डाइट में। और अपने मूड को अच्छा रखिए। मूड को अच्छा रखने के लिए रात को कैमोमाइल टी जरूर पिए। खूब अच्छे से फ्रूट्स और सैलेड्स खाएं। पानी बहुत अच्छे से पिए। थोड़ा सा दिन में एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज का मतलब जिम नहीं होता, एक्सरसाइज का मतलब होता है धूप में वॉक। 11 बजे 12 बजे से पहले वाली धूप में जरूर बैठे। अगर आपके शरीर को विटामिन डी यानी कि धूप, सनलाइट नहीं लगता है, तो आपके जो मेमोरी स्किल्स होते हैं वो वर्क नहीं करते। चाहे आप उसके लिए डाइट अच्छी रखें, जो मर्जी करें, लेकिन अगर आप धूप में नहीं बैठोगे तो आपका ब्रेन फंक्शनिंग अच्छे से नहीं होगा। क्रिएटिव रहिए। थोड़ा सोशलाइज कम करिए। सोशलाइज कम करने का ये मतलब है फिजिकली लोगों से बातें करो। फेसबुक या फिर आपका जितना भी सोशल मीडिया है सिर्फ उसमें ना लगे रहें, क्योंकि आप हो सकता है कि नेगेटिव कमेंट्स को ज्यादा एब्जॉर्ब करें। सो जो लोग आपके सामने पॉजिटिव हैं उनके साथ बातें करिए। जरूर 15 मिनट के लिए हंसिए। पावर नैप जरूर लीजिए और अपना ब्रेक करिए अपना मोनोटोनस रूटीन को डेली। सो दैट वाज इट। एजुकेशन फॉर्मूला था। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया हो। दैट वाज इट। थैंक यू सो मच। Thank you, Sherry.
we have another panelist, Dr. Khan. I would request him to please enlighten us, Dr. Khan. Thank you, Dr. Vijay. And such as nice to hear to Shreyaji talk to about this education, this new education she is talking about, and I couldn't agree more. Our brains function best when we, of course, eat a nutritious and balanced diet. And as rightly pointed out by her, essential fatty acids, antioxidants, vitamins, and minerals, they all nourish the brain and protect it from different kind of stress levels. And I also want to talk on another point. One thing is stress. Just today I was reading that a lot many Indians of us are stressed during this pandemic times, of course. So I also tell to the students that if you think that you are too rushed or too stressed to eat well, don't miss your diet, because good nutrition is an important